مجدي منك ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. ہولی کے تہوار پہ ملک بھر میں رنگ اور گلال کی دھوم، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری۔ اٹلی کے وزیر خارجہ گویلو چیجی نے اپنے عہدے سے دیا استعفیٰ، ہندوستانی ماہگیروں کے قتل کو لے کر کشیدگی میں اضافہ۔ پاکستانی زیر اہتمام کشمیر سے واپس لوٹے سابق اکثریت پسندوں کا مظاہرہ، فوری طور پر باز آبادکاری کا مطالبہ۔ اور حج کمیٹی آف انڈیا سے سفر حج پر جانے کے خواہشمند عازمین کی درخواستوں میں اضافہ، گجرات سے سب سے زیادہ 4480 درخواستیں موصول۔ آداب، پیش خدمت ہے منظرنامہ اور میں ہوں عادل خان۔ رنگوں کے تہوار ہولی کے موقع پر ملک بھر میں ہر سمت رنگوں اور گلال کی دھوم ہے۔ دارالحکومت دہلی کے ساتھ ہی مختلف شہروں میں ہر نکڑ و گلی ہولی کے رنگ سے سرابور ہے۔ لوگوں نے جم کر گلال اڑائے اور ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ کسی کے لیے یہ رنگوں کا تہوار ہے تو کسی کے لیے لذیذ کھانے کا۔ ہولی کو منانے کے انداز بے شک مختلف ہوں پر جوش ایک جیسا دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا ملک ہولی کے رنگ میں ڈوبا نظر آ رہا ہے۔ سڑک پر رنگ گلال سے سرابور کپڑے پہن کر نکلا لوگوں کا ہجوم و ہولی کے نغموں نے واقعی ہولی کا خوبصورت احساس کرایا ہے۔ یوپی ریاست کے بنارس میں ہولی کی خماری پورے شباب پر ہے، اور تو اور یہاں آنے والے بیرونی سیاح بھی بنارس کی ہولی کی مستی میں اسی طرح ڈوبے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ کھاٹی بنارسی رنگوں اور ابیر کے ساتھ پاک گنگا کا کنارہ۔ بنارس میں ہولی کی مستی ہر کسی کے سر کچھ ایسی چڑھ جاتی ہے کہ بچے، بوڑھے، جوان سبھی بس ہولی کی مستی میں سرابور نظر آتے ہیں۔ آخر تہذیب کے شہر کاشی کی تہذیب کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ Varanasi is best city because there are many people. How the feel in Varanasi people and this you? So happy. So happy. Nice, no nice. So nice. حکومت کی باز آبادکاری پالیسی کے تحت پاکستانی زیر اہتمام کشمیر سے واپس لوٹے سابق اکثریت پسندوں کے خاندانوں نے ایک مظاہرہ کر کے فوری طور پر باز آبادکاری کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ جس طرح پنجاب اور شمال مشرقی ریاستوں کے سابق اکثریت پسندوں کے لیے جیسا عمل کیا گیا، اسی طرح کشمیر میں بھی خود سپردگی کرنے والوں کی باز آبادی کے لیے حکمت عملی اپنائی جائے۔ ساتھ ہی یہ مظاہرہ دہلی پولیس کے ذریعے لیاقت علی شاہ کی گرفتاری کے سلسلے میں بھی کیا گیا ہے، جسے حزب المجاہدین کا اکثریت پسند قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی باز آبادکاری پالیسی کے تحت پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے واپس لوٹے سابق عسکریت پسندوں کے خاندان والوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے میں فوری باز آبادکاری کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح پنجاب اور شمال مشرقی ریاستوں کے سابق عسکریت پسندوں کے لیے کیا گیا ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی خود سپردگی کرنے والوں کی باز آبادی کے لیے حکمت عملی اپنائی جائے۔ خود سپردگی کرنے والے سیف اللہ فاروق نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس طرح کی باز آبادکاری چاہتے ہیں جیسا کہ پنجاب اور شمال مشرقی ریاستوں کے سابق عسکریت پسندوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں اور ہمیں آزادی سے جینے کا حق دیا جانا چاہیے۔ ہم بہت سی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں شناختی کارڈ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ دراصل سابق عسکریت پسند جموں کشمیر انسانی بہبودہ یونین کے پرچم تلے مظاہرہ کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دہلی پولیس کے ذریعے لیاقت علی شاہ کی گرفتاری کے سلسلے میں بھی یہ مظاہرہ کیا گیا، جس کو حزب المجاہدین کا عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک عسکریت پسند تھا جس نے باز آبادکاری پالیسی کے تحت خود سپردگی کی اور کشمیر لوٹ رہا تھا۔ فاروق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاستی حکومت کو پہلے عسکریت پسندوں کی باز آبادکاری کرنا چاہیے جو کشمیر میں ہی ہے۔
और उसके बाद बाकी बचे दिगर इंतहा पसंदों को सरहद पार से वापस आने को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तकरीबन 27,000 की तादाद में हैं, लेकिन हमें अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। अगर रियासती हुकूमत हमें बसाना चाहती है तो उसे पहले हमारी बाज़ाबातकारी करना चाहिए और फिर सरहद पार से बाकी साबिक अस्करियत पसंदों को वापस जाने के लिए कहना चाहिए। ख्याल रहे कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वादी में इंतहा पसंदों को 1997 की खुदसुपुर्दगी पॉलिसी के तहत फायदा मिला है। वजीर आला का यह भी कहना है कि 27 इंतहा पसंदों को रियासत में निगरानी के तहत लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुकद्दस सफर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन की दरख्वास्तें बराबर मौसूल हो रही हैं और हज कमेटी को अलाट शुदा 1,25,000 सीटों के लिए अब तक 2,56,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक 30 मार्च तक ये तादाद 3 लाख से ज़ायद हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शाकिर हुसैन ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि अब तक गुजरात से सबसे ज़्यादा 4,480 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुकद्दस सफर हज पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन की दरख्वास्तें बराबर मौसूल हो रही हैं और हज कमेटी को अलॉट शुदा 1,25,000 सीटों के लिए अब तक 2,56,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वहीं 30 मार्च तक ये तादाद 3 लाख से ज़ायद हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार अब तक गुजरात से सबसे ज्यादा 41,480 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस 3,07,000 अफराद ने हज कमेटी में दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 1,25,000 अफराद को सफर हज पर जाने का मौका नसीब हुआ था। ज़राए के मुताबिक 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रियासती हज कमेटियां कुरानंदाजी करेंगी और इसी के साथ हाजियों के इंतखाब और वेटिंग लिस्ट का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हाजियों के लिए रिहाइश गाहें लेने के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हज कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव का कहना था कि इस बार अजीजिया इलाके में 95,000 हाजियों के लिए रिहाइश यूनिट लेने का फैसला किया गया है, जबकि हरम शरीफ के नजदीक 30 से 35,000 रिहाइश यूनिट लिए जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि ग्रीन जुमरे में इस बार रिहाइश यूनिट क्यों कम लिए जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि हरम शरीफ के एतराफ में नदामी कार्रवाई की वजह से मुतअद्दिद इमारतें टूट गई हैं, इसलिए ग्रीन जुमरे में रिहाइश यूनिट कम दस्तयाब है। ताहम वो ये बताने से कासिर रहे कि गुज़िश्ता बरस ग्रीन जुमरे में ली गई कितनी इमारतें इन हंगामी कार्रवाई की जद में आई थी। उन्होंने बताया कि ग्रीन जुमरे में अब तक 26,000 से ज्यादा रिहाइश ली जा चुकी है, जबकि अजीजिया में अभी तक 6,000 रियासती यूनिट ली गई है। वाज़ेह रहे कि अजीजिया मक्का मुकर्रमा का मुज़ाफ़ाती इलाका है और हरम शरीफ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बसाया गया है। अजीजिया में कायम करने वाले हज्जाज को खाना काबा के लिए 24 घंटे मुफ्त बस सर्विस फराहम की जाती है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, श्रीनगर, लखनऊ समेत मुल्क के 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इन हाजियों को सऊदी अरबिया लाने ले जाने के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत टेंडर तलब करेगी और जिस एयरलाइंस का भी रेट कम होगा उसी के जरिए हाजियों की आमद और रफ्त का इंतजाम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इटली के वजीर खारजा गियोलियो टेर्जी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तानी महागीरों के कत्ल के 2 मुलजिम इटली के बहरी फौजियों को हिंदुस्तान वापस भेजे जाने को लेकर वहां की हुकूमत की काफी मजम्मत हुई है। इससे पैदा हुई कशीदगी के चलते उन्हें मुस्तफी होना पड़ा। इटालियन न्यूज एजेंसी ANSA ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वजीर खारजा ने अपने इस्तीफे का ऐलान पार्लियामेंट में किया है। वाज़ेह रहे कि इटली की हुकूमत ने वजीर खारजा को तलब किया था और तभी से समझा जा रहा था कि उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है। बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का गैर मुअय्यना अनशन जारी है। इस दरमियान केजरीवाल का आज 5वां दिन है। जराये के मुताबिक इस अनशन से केजरीवाल की सेहत में लगातार गिरावट हो रही है। साथ ही केजरीवाल ने दावा किया है कि 1,10,000 लोग बिल न देने के लिए राजी हो गए हैं। दूसरी जानिब दिल्ली के 264 वार्डों में पार्टी ने शीला हुकूमत के खिलाफ दस्तखत तहरीक भी चलाई है। दिल्ली के दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट में अल मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। कॉन्फ्रेंस की पहली नशीसत की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद नकवी ने की। उन्होंने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि रसूल अकरम की जिंदगी का हर अमल रिसालत का दर्जा रखता है, लिहाजा सीरत
सीरत रसूल लिखने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल हैं, लिहाजा उनका हर अमल रिसालत और नबूवत का आईना है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि रसूल पाक की औलाद ही सुन्नत मुस्तफ़ा को सबसे ज़्यादा समझती है, क्योंकि रसूल पाक को उनके घर वालों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लिहाजा अगर सही इस्लाम समझना है तो उनकी औलाद यानी पंजतने पाक की ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए। यही वजह है कि मुसलमानों के कुछ फिरकों में कुछ लोग गुमराह होकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और बेगुनाह लोगों का खून बहाकर दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों में जिन लोगों ने दीन इस्लाम को रसूल पाक की औलाद पाक से समझा है, उन लोगों में कोई दहशतगर्द नहीं पाया जाता, क्योंकि यही लोग सच्चे मुसलमान हैं और यही इस्लाम पर सही तरीके से अमल करते हैं। साथ ही सैयद मोहम्मद नकवी ने इमाम हुसैन की मिसाल देते हुए कहा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दुनिया के सबसे बड़े जालिम और दहशतगर्द यजीद के खिलाफ अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करके बता दिया था कि सच्चा इस्लाम क्या है। यहूदी आबादकारों ने टोलियों की सूरत में मस्जिद अक्सा पर हमला किया है। साथ ही काबिज इजरायली फौज ने यरूशलेम के मशरकी गांव बाब शम्स के नए तामीरशुदा मज़ाफ़ात पर धावा बोल दिया है और 50 से ज़ायद इंसानी हुकूक के कारकुनान को गिरफ्तार किया है। मकामी ज़राए के मुताबिक काबिज फौज ने मज़ाफ़ात में लगाए गए टेंट उखाड़ने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया है और एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया है। यहूदी आबादकारों ने टोलियों की सूरत में मस्जिद अक्सा पर हमला किया है। साथ ही काबिज इजरायली फौज ने यरूशलेम के मशरकी गांव बाब शम्स के नए तामीर शुदा मज़ाफ़ात पर धावा बोल दिया है और 50 से ज्यादा इंसानी हुकूक के कारकुनान को गिरफ्तार किया है। वहीं मकामी ज़राए के मुताबिक काबिज फौज ने मज़ाफ़ात में लगाए गए टेंट उखाड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया और एहतजाज करने वाले मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया है। अलक्सा फाउंडेशन बराए वक्फ आसार कदीमा की जानिब से मरकज इत्तलात फिलिस्तीन को मौसूल होने वाले बयान में कहा गया है कि यहूदी आबादकारों के हमरा मुतादिद यहूदी मजहबी पेशवा भी मौजूद थे। साथ ही इन रबियों की सरकर्दगी में इन यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में तलमूदी इबादत अंजाम दी। फाउंडेशन के मुताबिक यहूदी टोलियों के इस धावे के बाद मस्जिद अक्सा की राहदारी दरसगाहों में शरीक होने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए उसके इलाके में फैल गए। दूसरी जानिब काबिज इजरायली फौज ने यरूशलेम के मशरकी गांव शम्स के नए तामीर शुदा मज़ाफ़ात पर धावा बोल दिया है, जिसमें 50 से ज्यादा इंसानी हुकूक के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक काबिज फौज ने मज़ाफ़ात में लगाए गए टेंट उखाड़ने के लिए बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया है और एहतजाज करने वाले मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें फिलिस्तीनी कानून साज असेंबली के रुकन मुस्तफा परगोज़ी भी शामिल है। वहीं यहूदी बस्तियों के खिलाफ सरगम एक रुकन के मुताबिक 300 के करीब इजरायली फौज एक हेलीकॉप्टर समेत फौजी गाड़ियों में आधी रात के करीब आए और उनके हमरा कैदियों को ले जाने के लिए एक बस भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि फौजियों ने खैमों पर फोराफोटोन ग्रेनेड फेंके और वहां मौजूद अक्सर कारकुनान को गिरफ्तार किया। इससे पहले काबिज फौज ने इस मज़ाफ़ात के दाखिली रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी थी और यहाँ पर किसी शख्स और अशियाए जरूरिया को नहीं आने दिया। साथ ही कारकुन ने कुछ प्रेस को बताया है कि काबिज फौज के धावे से कबल तमाम कारकुनान ये अज़्म कर चुके थे कि वो इस इलाके में डटे रहेंगे और इसराइल के ये इलाका खाली करने के हुक्म के बावजूद नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपनी जमीनों पर मौजूद हैं और काबिज हुक्काम को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन और यरूशलेम पर बिना किसी हक के कब्जा किया हुआ है। हम अपनी जमीन पर साबित कदमी के साथ ठहरे रहेंगे और उसको छोड़कर कतई नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Karan Johar wishing everyone a very happy, prosperous but a safe Holi without water this year. It's important to us. Thank you. I wish you all a very, very happy Holi. Happy Holi. चैनल 1 के दर्शकों को हैप्पी होली। के मेनन, 11 टीवी और चैनल 1 को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। प्ले अ सेफ नाइस होली और सुखी होली। भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, ओ रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से। लेमन न्यूज चैनल 1 के सभी दर्शकों को करण ओबरॉय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। चैनल 1 और लेमन ग्रुप के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। Guys, this is Rohit Khurana. I wish you all a very happy Holi. पेश है जादू
पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने ईरान और बेलारूस के ताल्लुकात को सराहा है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 20वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने बेलारूस के हममनसब को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम की बुनियाद पर कायम हुए हैं। इन ताल्लुकात से इंसाफ और अमन को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे खित्ते समेत तमाम दुनिया को फ़ायदा होगा। साथ ही इस मौके पर ईरानी सदर ने बेलारूस की आवाम को भी मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। म्यांमार में नस्ली फसादात मजीद इलाकों में फैल गए हैं। साथ ही मसाजिद और मकानों को लूटने और नुकसान पहुंचाने की भी इत्तला है। ज़राए के मुताबिक रंगून से 50 किलोमीटर दूर वाक़े कस्बे में तकरीबन 300 अफराद ने मसाजिद और मकानों को निशाना बनाया और हमलावर अफराद ने मुसलमानों के मकानात और दुकानों को भी नजर आतिश किया। वाज़ेह रहे कि कस्बे मोकीतिला में बौद्ध और मुसलमानों के दरमियान कुछ रोज़ कबल शुरू हुए फसादात के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से अपने बैनुल अक़वामी अमले के 100 अरकान में से निस्फ को वापस बुलाने या दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह फैसला दमिश्क में अपने अमले की जाए क़याम होटल पर मार्टरों के हमले के बाद किया है। सिफारतकारों ने फ्रांसीसी खबररसा इदारे को बताया कि दमिश्क में अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी एलची अल अखज़र अल इब्राहिमी के दफ्तर को भी बंद कर दिया जाएगा।
और उसके अमले को पड़ोसी ममालिक लबनान या मिस्र मुंतकिल कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सिफारतकार ने बताया कि बैनुल अक़वामी सिफारती अमले को दमिश्क से वापस बुलाने का फैसला वहां लाहक खतरात के पेश नज़र किया गया है, क्योंकि वहां सिफारती मिशन के नज़दीक मुतअद्दिद खुदकुश बम धमाके और हमले हो चुके हैं। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा शाम में म्यांमार में नस्ली फसादात मस्जिद इलाकों में फैल गए हैं। साथ ही मसाजिद और मकानों को लूटने और नुकसान पहुंचाने की भी तला है। ज़राए के मुताबिक रंगून से 50 किलोमीटर दूर वाक़े कस्बे में तकरीबन 300 अफराद ने मसाजिद और मकानों को निशाना बनाया है और हमलावर अफराद ने मुसलमानों के मकानात और दुकानों को भी नजर आतिश कर दिया है। वाज़ेह है कि कस्बे में कितला में बौद्ध और मुसलमानों के दरमियान कुछ रोज कबल शुरू हुए फसादात के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब बर्मा की हुकूमत का कहना है कि नस्ली फसादात खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इन फसादात की वजह से जमहूरी इस्लाहात को नुकसान पहुंचेगा। वहीं बर्मा के सरकारी टीवी चैनल पर हुकूमती बयान को पढ़कर सुनाया गया है। हुकूमत का कहना है कि उन फसादात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वहीं मेकितला में हंगामी हालात नाफिज करने के बाद मजीद फौज भेज दी गई है। इत्तलात के मुताबिक मेकितला में नस्ली फसादात के शुरू होने के बाद से तकरीबन अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं ओदीकोन से 80 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद में आग लगा दी गई है। साथ ही 50 के करीब मकानात को भी तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब मेकितला के मकामी मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि पुलिस ने तशद्दुद के वाकयात में मुलव्विस होने के इल्जाम में कई बुद्धों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बहुत से मुसलमान इन हमलों से बचने के लिए इलाके से फरार कर गए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग रूपोश हुए हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि कम से कम 15 बुद्ध भिक्षुओं ने मुसलमानों के खानदान का घर जला दिया था, जो कि इस कस्बे के मज़ाफात में वाक़ था, मगर इसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि इस तशद्दुद का आगाज कुछ रोज कबल उस वक्त हुआ था जब एक सुनार की दुकान पर होने वाली बहस तूल पकड़ गई थी। इसके बाद मुश्तइल हुजूम ने मुसलमानों की मिल्कियती इमारतों को आग लगा दी थी, जिनमें मस्जिदें भी शामिल थी। इसके बाद मुखालिफ गिरोह में गलियों में दस्तबदस्त लड़ाइयां शुरू हो गई थी। वहीं मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में खुराक की कमी है, क्योंकि बाजार गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है। वहीं हजारों की तादाद में बलवा पुलिस इलाके में भेज दी गई है, जो जलते हुए घरों से लोगों को निकलने में मदद फराहम करा रही है। ताहम पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इलाकों को जलने से रोकने और लोगों को जख्मी होने से बचाने के लिए कोई अहम कार्रवाई नहीं की है। दूसरी जानिब जनूब मशरकी एशिया के एक नामा निगार का कहना है कि इन वाकयात ने गुज़िश्ता साल में रखाइन की रियासत में होने वाले नस्ली फसादात की याद ताज़ा कर दी है, जिसके नतीजे में तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए थे और हजारों की तादाद में लोगों को इलाका छोड़कर फरार होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो फिलहाल मंजरनामा में बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफिज। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैदान नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैदान नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों। ये जिस मन में समा जा بدي منك ما تحرمني لبكل دقيقة تعذبني.
are wishing everyone a very happy, prosperous, but a safe Holi. Without water this year, it's important to us. I wish you all a very, very happy Holi. Happy Holi. चैनल 1 के दर्शकों को फ्री होली। के मेनन 11 टीवी और चैनल 1 को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। प्ले सेफ नाइस होली और सुखी होली। बरसे भीगे चुनर